Welcome to you in 13th lecture of solutions. The topics are isotonic, hypotonic and hypertonic solutions, and osmosis and exosmosis, edema, reverse osmosis and desalination of seawater, and also some numericals on molecular mass and osmotic pressure. First go in isotonic, hypotonic and also hypertonic solutions. The first is the isotonic solutions. Iso means similar. Tonic word is used for osmotic pressure. That means two solutions of same osmosis, same osmotic pressure are called isotonic solutions. Since they have same osmotic pressure, that means they have same molar concentration. Clear? Yeah. Two solutions of same osmotic pressure and same molar concentration are called isotonic solutions. Clear? There no osmosis occurs between two isotonic solutions. दो isotonic solutions हैं यानी सेम osmotic pressure के सेम मोलर कंसंट्रेशन के, उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करेंगे तो उनके बीच ऑस्मोसिस नहीं होगी. नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. Hence concentration, molar concentration is similar. That is, for two solutions concentration C1 is equal to C2. They have same concentration. Clear? ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें हम और भी जोड़ सकते हैं at the same temperature. Clear? This is, you know, concentration means they have N1 upon N2 is equal to N2 upon V2. Number of moles upon volume. Number of moles you know. They have same value. This is where you know number of moles is equal to gram weight upon molar mass. Clear? Now, hypotonic and hypertonic solutions. Hypo means low and hyper means high. That means a solution of low osmotic pressure is called hypotonic, and a solution of high osmotic pressure is called hypertonic solution. Clear? A solution of low osmotic pressure and molar concentration is hypotonic solution, and a solution of high osmotic pressure and molar concentration
is hypertonic solution. Clear? And osmosis always occurs from hypotonic to hypertonic solution. Osmosis occurs from hypotonic to hypertonic solutions. Clear? You know, when you take two solutions separated by a semi-permeable membrane, you take in a solution of low concentration and a solution of high concentration. You know, osmosis occurs from low to high concentration solution, and low concentration solution has low osmotic pressure, and it has high osmotic pressure, and this solution is called hypotonic and this is called hypertonic. And it is called hypertonic. Osmosis always occurs from hypo to hypertonic solutions. Clear? Now another topic, and osmosis. Clear? Also called deplasmolysis. कभी कभी इसको हेमोलिसिस भी कहा गया है। जब लोग रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है एंडोस्मोसिस वाई वो देखते हैं। You take a piece of resin. Resin means munakka, Christmas. You know it has sugar solution of high concentration. You place it in water. You know what happens? Water enters inside. क्योंकि इसका जो छिलका होता है ना, covering, it acts as semi-permeable membrane. Then what happens? It too swells up. It swells up. ये देखें श्राइप्ड कंडीशन में है, और ये आपका रेजिन है, ठीक है ना। स्वेल हो गया हमारे पास में, स्वेल्ड कंडीशन में हमारे पास में, स्वोलन कंडीशन में है, और ये क्लियर। दिस एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। इसी प्रकार से आप एक अंडे को लीजिए, उसको डाइल्यूट HCl में डाल दीजिए, उसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है डिसॉल्व स्लोली एंड स्लोली बाय एसिड, और जो अंडा बचे उसको आप फ्रेश वाटर में रख दीजिए, देखिए ये स्वेल अप कर जाएगा, इट रप्चर्स ड्यू टू एंडोस्मोसिस। क्लियर? सो हाउ यू डिफाइन इट? When a cell
is placed in fresh water, then it swells up due to osmosis. It is called endosmosis. Clear? It is very important. इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है. जैसे कि आप देखते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसी मेथड से. क्लियर? बाहर जो वाटर होता है फ्रेश वाटर है, और जो रूट्स के अंदर जो सेल्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. ठीक? तो अंदर की ओर वाटर थ्रू ऑस्मोसिस पहुंचता है, और इसी फिनोमिना के थ्रू जो है इस टर्म्स में एक सेल से दूसरे सेल में वाटर ऊपर की ओर पर पहुंचता है. क्लियर? तो ये एंड ऑस्मोसिस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी कई जगहों पर बहुत है लाइफ में. नेक्स्ट है आपका एक्स ऑस्मोसिस. और प्लाज्मोलिसिस. इसको देखें एग्जांपल से. यू टेक अ ग्रेप, यहां पर इसके अंदर आपका शुगर सॉल्यूशन होता है, ये यहां बाहर जो है हाईली कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए. ठीक? शुगर सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. यू नो व्हाट हैपेंस? यहां कंसंट्रेशन लो है, यहां हाई है, तो ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर ऑफ ग्रेप कम्स आउट एंड इट श्रिंक्स. in this way. ये आपका जो है श्राइप्ड ग्रेप हो गया. तो ये वाटर का बाहर आना कहलाता है एक्स ऑस्मोसिस, और इसे कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड. सेल्स में ऐसी कंडीशन होती है. यहां जो अंगूर का छिलका है आपका, ठीक है ना, ये आपका जो है अंगूर का छिलका, वो आपका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का वर्क करता है. हाउ यू डिफाइन इट? when a cell is placed in a solution of high concentration, then it shrinks due to osmosis. It is called एक्स ऑस्मोसिस. अभी आपने एग्जाम्पल देखा था. अभी मैंने आपको एग वाला एग्जाम्पल बताया था कि इसको फ्रेश वाटर में रखते हैं तो रप्चर्स सेल्स कर जाता है. इसका उल्टा रखिए, आप उसको सैलाइन वाटर में रख दीजिए, नमक के गाढ़े घोल में, वो आपका श्राइप कर जाएगा. इसका साइज छोटा हो जाएगा, उसका वाटर धीमे धीमे बाहर आ जाएगा. इट इज कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस. इसका और भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. जब देखते हैं हम लोग आम को, मैंगो को, उसका अचार बनाते हैं, पिकल्स, तो क्या करते हैं, उसको जो है नमक के गाढ़े घोल में रखते हैं, प्रिजर्वेटिव्स में रखते हैं ड्राई करके.
उससे क्या होता है कि जल्दी खराब नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं जब उसमें अटैक करती हैं तो बैक्टीरिया सेल के कंपैरिजन में बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, साल्टी है, तो बैक्टीरिया सेल का जो वाटर है वो बाहर आ जाता है एंड इट श्राइव्स एंड बिकम्स डेड। फंगस है, बैक्टीरिया है, सब मर जाते, खत्म हो जाते। ऐसे ही आंवले का मुरब्बा बनता है, उसमें भी ये कंडीशन है। वहां चीनी का गाढ़ा घोल होता है, वहां भी ये कंडीशन है। बैक्टीरिया से अटैक करती है, उनमें एक्सॉस्मोसिस हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में। अब इनसे संबंधित एक डिजीज है एडिमा। इनमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत अधिक साल्टी फूड लेते हैं। मालूम पड़ा दाल में कस के नमक डाल रहे हैं, सब्जी में नमक डाल रहे हैं, हर चीज में नमक कस के, ठीक, बहुत अधिक साल्ट लेते हैं। तो मालूम क्या होता है, उनकी जो टिश्यूज होती है और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं हमारे पास में, ठीक, उनमें सेल से बाहर वाटर आने लगता है और वहां वाटर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है इन टिश्यूज, इन टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेलुलर स्पेसेस, वाटर रिटेन्स, और उसके कारण बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, पफनेस आ जाती है। दिस डिजीज इज कॉल्ड एडिमा। क्लियर? देयर पीपल taking a lot of salt in food experience water retention in tissues and intercellular spaces. Clear? Due to osmosis. Clear? It gives puffiness, or swelling. Clear? It is called edema. ये एक डिजीज है। आइए अगले टॉपिक में चलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये क्या होता है ये देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कहीं पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर की दो डेफिनेशंस, उसमें एक एक्सटर्नल प्रेशर वाली डेफिनेशन पढ़ी थी। ये वाटर लिया हमने और यहां पर ले लिया
आपका सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब हम लोग इस पर हम लोग यहां से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, और ये प्रेशर जो है यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, then what happens? Solvent particles moves in this direction. Clear? ये आपके जो हैं इधर मूव करने लगेंगे। इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन। इसका हम लोग यहां पर यूज करते हैं जहां पर फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है, अधिक सॉल्टी वाटर, तो वहां पर सी वाटर को हम लोगों ने लिया, उसकी स्लोली एंड स्लोली यहां से सप्लाई करते हैं सी वाटर की, और यू कैन से सलाइन वाटर, और प्रेशर इसमें धीमे धीमे बढ़ाते हैं। We apply external pressure greater than osmotic pressure of water. Then what happens? Water from saline water come in this direction, and fresh water is obtained, which is used for drinking and so on. Clear? इसे कहते हैं desalination of sea water. अब यहां भी ध्यान रखेंगे, हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो यूज करेंगे, ठीक, वो एक ऐसा सब्सटेंस की यूज करेंगे जो मैक्सिमम सॉल्यूट को बिल्कुल रोक ले। इसके लिए बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये होती है आपकी सेलुलोज एसीटेट की। ठीक, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन allowed to pass only water molecules, not of salt particles. Clear? This is called reverse osmosis. Clear? So when external force applied greater than osmotic pressure on solution, keeping separate from fresh water, then osmosis is reversed. It is called reverse osmosis. Clear? हम लोगों ने पिछली बार न्यूमेरिकल्स देखे थे ऑस्मोसिस के। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल जिसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे। देखिए, शायद आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या सीबीएसई में आया हुआ है। 100 मिलीग्राम of a protein is dissolved in water to make 10.0 milliliter of solution. Clear? This solution has osmotic pressure is 13.3 millimeter mercury. Clear? At 25 degree
centigrade. Find molar mass of protein. Clear? First thing, their mass is given. Clear? 100 milligram. You convert into gram. How you convert? 100 upon 1000 gram. So it comes 0.1 gram. Then osmotic pressure is given. जिसे हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं 13.30 मिलीमीटर मरकरी. And you know 1 atm is equal to 760 millimeter mercury. So you convert into atm. 760 से डिवाइड करके ये आपका atm में आ जाएगा. atm means एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्लियर? और वॉल्यूम कितना गिवन है? 10 ml. इसको भी आप कन्वर्ट करें लीटर में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू डिवाइड बाय 1000. ये आपका लीटर में आ जाएगा. क्लियर? कितना आ रहा है ये? 0.01 लीटर. नो यूज फॉर्मूला. क्या होता है? पाई वी इज इक्वल टू RT अपॉन WRT अपॉन M, मॉलिक्यूलर मास. आपको क्या फाइंड आउट करना है? M. जरा सबकी वैल्यू पुट करिए. ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन 13.3 upon 760. Volume is given 0.01. Omega is given, W is given 0.1. Clear? R की वैल्यू आपको मालूम ही क्या होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. ठीक है ना? उसको रख दीजिए 0.082. और टेम्परेचर इज गिवन 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको केल्विन में कन्वर्ट करिएगा. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25 प्लस 273 केल्विन, 298 केल्विन. तो ये 298 आ जाएगा अपॉन m. इसको आप कैलकुलेट करें और m की वैल्यू फाइंड करें. इट कम्स 1393.4 ग्राम. इस प्रकार आप मोलर मास फाइंड कर सकते हैं. ओके, को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें. ओके.